जी सरला जी, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड डिस्कस द। हाँ बोलिए मैडम, कैलकुलेशन कहाँ रॉन्ग हुआ थोड़ा जानने को था मेरे को। यस 1957 का नंबर आता है, 10, 17, 22 नंबर आता है। यस ओके, हाँ 22 का -11 नहीं नहीं, मेल का। 22 का -11 नहीं करना है। 22 को यू हैव टू टेक इट टू द सिंगल डिजिट फर्स्ट। अच्छा अच्छा, वो उसको सिंगल डिजिट लेना है। ओके ओके, देन यू हैव टू डू। ओके ओके, या अच्छा वो भी सिंगल डिजिट करना है। दैट मीन्स 1 - 11 मतलब 10, 10 मतलब 1 हुआ। 22 is coming when you hear the हाँ when you add 22 on the मतलब year 2 + 2 22. 4 हुआ है, 4 Yes, हुआ है, 4. Now when you 4 हुआ calculate है, for the 4 meal, हाँ या now ओके ओके, calculate. 7 आता है, 7 आता है। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक ओके यू। ओके, वेलकम वेलकम। और किसी को कोई कैलकुलेशन करने में इशू आ रहा है या जिसका रॉन्ग था उसको समझ में नहीं आया है? किसी को अगर अभी अपना चेक कराना है सो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। जिन लोगों का रह गया था अपना, एक बार चैट बॉक्स में आप लोग अपना नोट, एक बार चैट बॉक्स में आप लोग भेज के और चेक करा सकते हैं। चलिए अब थोड़ी सी हम लोग क्वेरीज ले लेते हैं। सो किसी की कोई क्वेरी है सो जूम का हैंड रेस कर दीजिए। जूम वाला हैंड रेस कीजिए इमोजीज मोर पर जाकर, और वहां से आप हैंड रेस कर सकते हैं। ओके गौरव जी, यस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। मैम वही था, डेट ऑफ बर्थ कौन सा लेना है, जो एक्चुअल होता है वो लेना है या जो ऑन पेपर डॉक्यूमेंट्स पे होता है वो लेना है? ठीक है, अब इसका आंसर आप बताइए पहले, आपको क्या लगता है? मैम मतलब हर जगह तो डॉक्यूमेंट का यूज होता है तो डॉक्यूमेंट का ही लेना चाहिए आइडियली। आई डोंट नो बट मतलब मुझे ऐसा लगता है। ओके, और कोई कुछ बताना चाहेगा इसके बारे में? हम सबके व्यूज लेते हैं आज। आप लोग अपने आप को अनम्यूट No, कर it should सकते be. No, it is always as per the true date of birth, not as per document. हैं। ओके, नाउ अब और कौन बताना चाहेगा? जो भी बताएगा अपना कैमरा ऑन करके बताएगा। ये मैडम, ये न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं हम लोग को, जॉब ढूंढने नहीं जा रहे हैं। इसके लिए अपना एक्चुअली जो भी बर्थ है उसी का ऊपर ही करना है। ओके, और कौन बताएगा? अपने अपने व्यूज दीजिए जल्दी जल्दी। Madam, as per our true date of birth only we have to calculate. ओके, व्हाट अबाउट रूपल जी? अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। As per date of birth. एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और डॉक्यूमेंट्स? Yes. No, actual date of birth. ओके, व्हाट अबाउट एस कुमार जी? Actual date of birth only. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बसंत जी, श्रीनिवास जी, रेखा जी, रविंद्र जी, विभा जी, व्हाट अबाउट अदर्स? Harshil ji, if you want to ask any question, so you have to switch on your camera. Ma'am, I am not asking question. I am just giving my opinion on the what date of birth we have to take. Ma'am, I think we should take like the actual one Please switch because on your camera, Harshil ji. Please switch on your camera. hello, Yeah. ma'am. Yeah. Now you can. Yes. Okay, ma'am. Yes, ma'am. I think we have to take like the actual date of birth because, ma'am, we are from the starting. So I think it will affect more us than like the date of birth on the document because the date of birth on the documents like have came after like a different time. So they will not give the like exact position or the exact characteristics of the person. So Okay. that's why. Okay. हाँ जी, बसंत जी आप बताइए। Ma'am, actual date. Actual date. Okay. What about Ravinder ji?
Unmute yourself. Yes. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Yeah, to calculate KUA number, we should consider actual original date of birth. And as per for the name correction or spelling correction, we should consider the both the date of birth. That's what I think. Okay. Like records, the date of birth from the records and also the original. So we should compare both. And actually, we should count the record date of birth. The date of birth from the records we should consider for the signature correction and all. Okay. This is what I know. Okay. For Okay. KUA number, Okay. original date of birth. Okay. Okay. Fine. Fine. What about Srinivas ji? What are your views? It's actual date of birth we need to calculate, I suggest. Okay. Or someone else want to share their views? Rekha ji, Vibha ji. Please unmute yourself. चलिए, तो सबके व्यूज अलग अलग थे. किसी ने बोला कि डॉक्यूमेंट्स वाली लेनी चाहिए, किसी ने बोला एक्चुअल वाली लेनी चाहिए. ठीक है. सो इसका मैं आपको ये आंसर दूंगी कि डेस्टिनी है, आप चाहे यूनिवर्स को मानिए, चाहे आप भगवान को मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं. ओके. सो दे हैव, सबसे पहले उन्होंने मतलब क्या करा था, उन्होंने सबसे पहले ही हमारी डेट्स को कैलकुलेट कर लिया था कि हमको कब बॉर्न होना है. ठीक है. वो हमारे हिसाब से नहीं चला जाता है. ठीक है. वो वहीं से कैलकुलेट होकर आता है कि हमें कब बॉर्न होना है. आपने कभी भी देखा होगा कि हमें डिलीवरी के लिए 2-3 डेट्स मिलती हैं, लेकिन बच्चे को जब आना होता है वो तभी आता है. ठीक है. व्हेन अ चाइल्ड हैज टू टेक बर्थ, वो उसी डेट पर ही डेट ऑफ बर्थ उसकी तभी ही ओके होती है. ठीक है. एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ ही आपकी हमेशा कैलकुलेट होगी. क्यों? क्योंकि वो डेस्टिनी से बनकर आई है. ठीक है. ये जो आपको नंबर्स मिले हैं, ये आपको यूनिवर्स से मिले होते हैं. ये जो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ होती है, दिस इज कंसिडर्ड, नॉट द डॉक्यूमेंट्स वन, बिकॉज दैट इज नॉट रियल. ओके. सो जिसकी भी 2 डेट ऑफ बर्थ हैं कि डॉक्यूमेंट्स में अलग हैं एंड एक्चुअल इज डिफरेंट, सो आपको हमेशा क्या करना है, आपको यू ऑलवेज हैव टू कंसिडर द एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ on which you are born. उसी से ही आपकी हमेशा प्रेडिक्शंस होती हैं, नहीं तो डॉक्यूमेंट्स वाले से. डॉक्यूमेंट्स का तो देखिए ऐसा है ना, हम कभी भी कुछ भी डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन कर सकते हैं. सो उससे हमारी प्रेडिक्शन कैसे होगी? नहीं हो सकती. जो भगवान ने हमें डेट ऑफ बर्थ भेजी है, ठीक है, जो हम एक्चुअल जिस दिन हम बर्थ हमने लिया था, दैट विल बी कंसिडर्ड. फ्रॉम दैट डेट ऑफ बर्थ क्या होगा? आपको हमेशा राइट प्रेडिक्शंस मिलेंगी. ऑलवेज यू विल गेट द राइट प्रेडिक्शंस. चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? But ma'am, I have same question, ma'am. Yeah. But the date of birth which we had noted on the records, whatever we paid on records, so that also will impact our career, right? See, your voice is not clear. थोड़ा सा clear बोलिए. Okay. What I was asking, whatever we had entered in record, that was the date of birth that will impact on our life and our career, right? So why can't we consider for correction, name correction or calculating the PUA number? I can't understand what you want to say actually. So, for example, you're telling that the date of birth which we had mentioned in the records not to be considered, right? Yes. So, in what scenario we should consider? In what scenario? In what cases we should consider, and why we should not consider that? Because you are not born on that day. Okay. That is correct, but still that is impact. The date of birth is impacting on our life, our career. What? Still that is impacting on our career.
the date of birth, whatever we had written in the records, that is impacting on our career. No, that will not impact your life. It is not giving 1%, not even 1%. It is not giving not even 1% in your life. No impact on your life of the documents date of birth which you have mentioned in the documents. जो भी आप mention करते हैं अपने documents में, that is not real date of birth. So वो आपसे connected कैसे हुई? आप इस चीज को सोचिए, ठीक है? It is not connected to you, क्योंकि आप हो सकता है आज आपने कुछ और लिख दिया, नेक्स्ट टाइम आप कुछ और भी मेंशन कर सकते हैं. सो हाउ इट इज कनेक्टेड टू योर लाइफ? योर रियल डेट ऑफ बर्थ विच ऑन विच डे यू आर बोर्न इज कनेक्टेड विद द यूनिवर्स. भगवान ने आपको उस दिन पर्टिकुलर बॉन्ड करा था विद दैट नंबर्स, उन्होंने आपको ब्लेस करके भेजा है. सो दैट विल कनेक्ट, दैट विल गिव द इम्पैक्ट इन योर लाइफ. वो जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसका राइट प्रेडिक्शन, राइट इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा. ओके, and the date of birth which you have mentioned in the records, तो records में तो आप कुछ भी लिख सकते थे. more than 90% जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा जुलाई की डेट ऑफ बर्थ मेंशन करते हैं. क्यों? मंथ हमेशा चेंज कर देते हैं, डेट वही रहती है. क्यों? अबाउट बिकॉज आपको क्या करना होता था, पहले स्कूल में एडमिशन लेना होता था. यू हैव टू टेक द एडमिशन इन द स्कूल एट द राइट एज. सो at that time you will change the date of birth in the documents. ज्यादातर इसके पीछे यही रीजन होता था. Okay. So can't we consider this for name change and all, name spelling correction and all? Yes, इसके अंदर देखिए मैं यही बताती हूँ कि न्यूमरोलॉजी में हम सबसे बड़ी जो मास्टर स्ट्रोक होता है ना, वो इस बात को ही बोलते हैं कि we can't change and we never change our date of birth. जो भगवान ने हमें नंबर्स से ब्लेस्ड किया है, ठीक है, चाहे वो हमारे मिसिंग नंबर्स हैं, चाहे रिपीटेटिव नंबर्स हैं, लेकिन हम उनको कभी चेंज नहीं कर सकते. वी कांट चेंज अवर डेट ऑफ बर्थ, बट वी कैन करेक्ट अवर नेम टू एनहेंस अवर लाइफ. ठीक है? Okay, okay, ma'am. Yeah, Thank you. Yes. नेक्स्ट और किसी की कोई क्वेरी है? Ma'am, you explained about the birth number. It's telling about the characteristics, nature, way of thinking, lifestyle, and everything. Yes. What about the destiny number? What it going to say, and Quan number? What it is going to say? What is the thing like that? See, destiny number is also will tell about. Actually, we combined for the prediction. We combined both the numbers, birth number and destiny number. ठीक है, फॉर द प्रेडिक्शंस, क्योंकि मेन 2 नंबर्स आर देयर, बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर. ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं जिसकी वजह से हम प्रेडिक्शंस देते हैं, या आगे आने वाले टाइम में बहुत, प्लीज ये आप मान के चलिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर्स ऑफ द न्यूमरोलॉजी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं हमारी न्यूमरोलॉजी के. एंड कुआं नंबर इज अ एंजेलिक नंबर, जो कि कहते हैं ना कि भगवान ने हमें ब्लेस्ड होके एक अलग से नंबर दिया. दैट इज नोन एज कुआं नंबर, एंजेलिक नंबर आप उसको बोलते हैं. तो जैसे जैसे अभी आप आगे इस चीज को लर्न करेंगे, व्हेन यू लर्न मोर अबाउट द न्यूमरोलॉजी, तब हम उसमें आपको बता पाएंगे. जैसे कि जब आप उसमें देख रहे होंगे कि व्हेन यू कैलकुलेट द बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, सो किसी का बर्थ नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 6 है. ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी का डेस्टिनी बर्थ नंबर 1 है एंड डेस्टिनी नंबर 8 है. सो इस टाइप से 81 कॉम्बिनेशंस आर देयर फॉर बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, जिसके थ्रू हम प्रेडिक्शन करते हैं. सो देयर आर 81 कॉम्बिनेशंस जिसके थ्रू हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं. Okay, understood. Okay. या सो इट्स अ ह्यूज एंड वास्ट सब्जेक्ट. Okay. 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 ओके, Thank you, ma'am. ओके, वेलकम. और किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी तक जितना भी हमने बताया है उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, वन थिंग मोर, हमारी एक शेल मैजिक की वर्कशॉप आने वाली है, दैट विल बी ऑन टेलीग्राम. सो वो टेलीग्राम पर रहेगी. एंड शेल्स
जो कि आपको बीच पर मिलते हैं, जिसको हम हिंदी में सीप, शंख वगैरह बोलते हैं, तो इनके मीनिंग्स क्या होते हैं एंड ये हमारी लाइफ से किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। और इसमें हम कुछ स्पेल्स वगैरह भी आपको बताएंगे, मैजिकल जार बनाना भी बताएंगे कि किस तरीके से बनता है, और इसमें एक आपको मेडिटेशन भी इसमें बताया जाएगा, हाउ टू कनेक्ट विद द शेल्स। ठीक है, कितने टाइप्स के शेल्स होते हैं, उनका क्या मीनिंग होता है, और आप उनको अपनी लाइफ से किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, वो उसमें उसके बारे में पूरा बताया जाएगा। एंड दैट विल बी ऑन टेलीग्राम, और दैट विल बी टोटली इन इंग्लिश। ओके, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, सो यू कैन पिंग मी पर्सनली, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। इसकी डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो अब किसी की कोई क्वेरीज नहीं है तो आज का सेशन हम लोग यहीं एंड कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम अभी नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। जब तक आप लोगों का होमवर्क यही रहेगा कि आप लोग बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर अपने फैमिली मेंबर्स के कैलकुलेट करिए। ओके, और साथ में कुआं नंबर, मेल फीमेल आपके घर में सब लोग होंगे, अपने रिलेटिव्स की डेट ऑफ बर्थ लेनी स्टार्ट करिए और उनके भी कुआं नंबर कैलकुलेट करना स्टार्ट कीजिए। ओके, सो इससे आपको प्रैक्टिस बनी रहेगी आपकी। So thank you so much. Thank you all of you. You can unmute yourself. All of you, you can unmute. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you Thank so you, much. ma'am. Thank you. Thank you so much. ma'am. जल्दी ही आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यूमरोलॉजी Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. And good night. Thank you, ma'am. Thank you so Good much. night, ma'am. आप सब लोग यहाँ पर आए उसके लिए thank you so much. God bless you.